नाजरीन, सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। शहर बेंगलुरु के प्रगतिपुरा में मौजूद द एलिसेंस स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया। जयनगर के JSS ऑडिटोरियम में तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम पेश किया। चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। ನಮ್ಮಿಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು ಜಾನಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾನಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂದ ಅಂತಾರೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂದ ಅಂತಾರೆ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ಮಿಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ಸು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು एलिसेंस स्कूल की बुनियाद 24 जुलाई साल 1991 यानी 1991 में फाउंडिंग चेयरमैन मोहम्मद अली जमादार और फाउंडिंग प्रिंसिपल कमर तज़ीन ने रखी थी और स्कूल इंतज़ामिया हर साल इनकी याद में एनुअल डे मनाता चला रहा है। इस मौके पर स्कूल के सेक्रेटरी MN ज़की, प्रिंसिपल और दीगर मेहमानों ने अपने तासुरात का इजहार किया। सेकुलर टाइम्स के लिए बेंगलुरु से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। एलिसेंस स्कूल इज़ पार्ट ऑफ एलिसेंस फाउंडेशन, अबाउट 39-year-old organization है, and we have been running the school in the slum areas, which is one of the largest slum, प्रगतिपुरा बोल के है,
जो बनशंकरी मंदिर है, मंदिर के बाद में जो पीछा जो हिस्सा है उसके आजू बाजू में इलियास नगर है, फिर अपना यारब नगर है और कोई दूसरे कोई पालियाज वगैरह वगैरह हैं. तो ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन दैट एरिया आर ऑल फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली एंड सोशल स्टेटस उनका इतना नहीं है और उनको वो जानकारी भी नहीं है कि उनके सोशल स्टेटस में उनको क्या चाहिए. सो हमारा जो इंस्टीट्यूशन इतने सालों से चल रहा है, 35 साल से, इट इज़ बीन सेटअप बाय माई फादर एंड माई मदर मिस्टर मोहम्मद अली जामदार एंड मिसेस खमर तज़ीन, हु इज़ बीन द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. We lost them in COVID last year, and my father was ill in 2017 when we lost them. So what is it that we are doing there? Why did we choose this place? If that's the question, the whole point is we need them to know what is the value that knowledge will bring. We need them to know how knowledge can be utilized, right? And our punchline is knowledge is power. So when they learn and they start understanding what is the value that they're supposed to get. I mean, when somebody comes there, as politicians come, they use the place for their own purposes. A lot of other people spend a lot of money. There is no cleanliness. So these social values have to be learnt by them. We are trying to make sure that they understand that this is their need. We are not scoring marks from, 85 to 90, 95 to 100. That is not the intent of our school. For that they can go to a lot of many school which is being done there. We are bringing students who are zero to get them a score which they will pass their school, which they will pass off their 10th standard exams, right? So that is the kind of students we are generating out. We have also started some karate classes for them. We have started giving them language classes where they are supposed to learn speaking English, Hindi and Kannada must and should. We are learning and giving them vocabulary so that every day they get into learning multiple words so that is used in their vocabulary, making sure that we are giving them a wholesome learning environment. आज के प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? आज एनुअल डे किस तरह से मनाया गया? Well, annual day today, it's more towards a dedication to my parents, my father and my mother who instituted the school from where we have come, जहाँ से हम आए हैं. और क्योंकि हमारे माँ बाप मेरे को इस जगह तक लाए हैं, मेरी ये इंटरेस्ट है कि हमारे बच्चों में भी उस तरीके की इंटरेस्ट लाने की कोशिश हो रही है और बच्चों में जो शऊर आना है उसके लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए हम लोग उनके लिए स्टेज पे ये सब प्रोग्राम अरेंज किए हैं. रिलीजन के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बातें हमारे पास नहीं होती हैं. पूरा मिक्स्ड कल्चर है हमारे पास, सारे लोगों की रिस्पेक्ट होती है हमारे पास है. तो ये हमारा बहुत बेसिक प्रिंसिपल है. एक्चुअली 2-3 साल से तो जो एनुअल डेज नहीं हो रहे थे, इस साल हम लोगों ने सोचा कि हर प्रोग्राम करेंगे, लाइक टीचर्स डे, हर सेलिब्रेशंस हमने किए. तो इसी तरीके से एनुअल डे भी इस साल कैसे भी हमको करना है. सो वी हैव स्टार्टेड प्लानिंग सिंस 2-3 months and all preparations all we have done. So I hope it was a successful program. अलीसेंस स्कूल्स जो है ना, ये इसके जो बानी हैं हमारे ज़की साहब के वालिद साहब, बहुत मेहनत करके उनके वालिदैन जो है स्कूल बनाए. आज का जो प्रोग्राम है, कई वर्षों के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल डे फंक्शन हो रहा है. इसकी इस वक्त जो है कोविड के बाद ये जो जोश है पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, दिस इज़ रियली लॉडेबल. मेरा यही पैगाम है कि हमारे वालिद हमेशा बोलते थे कि एजुकेशन इज़ द वेपन विच कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. तो एजुकेशन पे हम अगर काम करेंगे तो सब जगह कामयाबी फैला सकते हैं. और एजुकेशन में भी मैं अभी बच्चों को यही मैसेज अंदर भी दे के आया कि 3 चीज़ें कामयाबी के लिए इनको हेल्प कर सकती हैं. और मैंने उसको छोटे से एक एब्रीवेशन में डाल दिया है, एज मतलब ए फॉर एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड यानी कि आपका सोचने का तरीका, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रहेगा तो आप हमेशा कामयाब हो सकते हो. क्योंकि आपका देखने का नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही आपकी दुनिया डिफ़ाइन होती है. और दूसरी चीज़ है आपका गुरु. आपको हमेशा ज़िंदगी में एक गुरु, एक मेंटर, एक कोच, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, राइट. और वो आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आपको एक कोच या गुरु मिल गए तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है. और तीसरा है एनवायरनमेंट. आप हमेशा से जिस एनवायरनमेंट में रहोगे उसी के हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी. आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके साथ आप भी अच्छे बनोगे.
अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहोगे आप भी कामयाब बनोगे। तो इसीलिए हमेशा कामयाब लोगों के साथ रहिए, क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई कैन शो योर फ्यूचर। सो अगर आपका फ्यूचर कामयाब होना है तो आपको एनवायरनमेंट यानी कि आपके अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए। मेरा नाम आयशा बानू है। मैं कम्युनिटी सेंटर हाई स्कूल में टीचर थी और 33 इयर्स में एज ए प्रिंसिपल मैं रिटायर हुई। और बहुत से बच्चे हमारे पास तालीम याफ्ता होकर निकले। उसमें ज़की भी एक मेरे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, जिन्होंने अली एंड सन्स नामी स्कूल जो फाइंड की है और जिसके आजकल वो सेक्रेटरी हैं। आज उनके फंक्शन में मुझे बुलाया, इनवाइट किया गया था, मैं आई थी यहाँ पे और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्कूल को आगे बढ़ाया है और इंशाल्लाह और भी बहुत काबिल हैं ज़की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो और इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मुझे मालूम है ज़की में कोई ज़ात पात का कोई फ़र्क नहीं होता और सभी को एक ही निगाह से देखते हैं। और माशाल्लाह इस स्कूल में भी बच्चे हर एक मज़हब के हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज के जनरेशन में बच्चों को सबसे ज़्यादा ये बात उनके जहन में डाली जाए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम किसी एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते और सबको एक साथ मिलजुल कर बढ़ना है, यहाँ एक साथ रहना है और एक साथ काम करना है। तो मैं तहे दिल से ज़की का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको और उनकी फ़ैमिली को सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे और हर एक मकसद में उनकी को कामयाबी हासिल हो। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।